Okay, dear student, let's start the today's topic. So yesterday we have discussed about the women change the world. So women change the world. In this chapter, we will discuss how we treat with the women, our society, and what are the different way where they feel inequalities in society जहाँ पे उनको लगता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है. तो what is the way through this women can change the world? What are the way? क्या तरीका है जिससे women they can change the world? तो in this chapter we'll discuss few example from our past related to chapter where women play the important role for changing, or through their changing we can say कि they maybe change the world or they are changing the world. So in this topic, women change the world. What is the one way through the women change the world? That is only education. Education means if women aware about their rights, what are the rights given by the government, ruling party, you know very well ruling party, you are studying chapter 3. So when they know about their rights, when they know what is good for them or what is the bad through the education, so women can change the world. So education is only one way through the women change the world. Or in this chapter we'll discuss about a story related to the Lakshmi, another one story related to the Rozia Saktawat. So please mute your mic, please. Yes. So this is the way through the women change the world. So just a example. Okay. I am Good giving morning, one sir. place, Priyadarshan, mute your mic. And when you join the class, so it can't possible कि we can wish to each other. So when you join your class means the most welcome. मैं आपकी तरफ से good morning, good afternoon जो भी है उसको मान के चलूँगा when you are joining the class. So please avoid the such type of things. So let's start. Dear, in your NCERT book, page number 55, there are the 4 to 5 categories are given. Teacher, farmer, factory workers, nurses, scientist and pilot. Okay. तो think about it. आप सोचे टीचर, think about कि एक इमेज क्रिएट कीजिए इन योर माइंड. फार्मर टू रिलेटेड क्रिएट अ इमेज, फैक्ट्री वर्कर टू रिलेटेड क्रिएट अ इमेज. ओके. एंड नर्स टू रिलेटेड क्रिएट ए. नर्स इज द वर्ड जो बोथ के लिए दोनों के लिए यूज होता है. इट नॉट कंसिडर विद द जेंडर. ओके. मे बी मेल भी नर्स है तो मे वी यूज द नर्स वर्ड. समटाइम वी आर यूजिंग द कंपाउंडर आल्सो, कंपाउंडर. तो नर्स, साइंटिस्ट एंड पायलट. तो आई एम गिविंग वन मिनट. इमेज योर सेल्फ, क्रिएट द इमेज इन योर माइंड कि थिंक अबाउट द नर्स, थिंक अबाउट द फार्मर्स. कोई भी ऐसी इमेज आप क्रिएट कीजिए. ओके. you observe तो most of teachers are female. तो many time what happens dear कि when we create the image ना, जैसे हम टीचर के बारे में सोचते हैं तो most of time we think कि female teachers or maybe like, तो you know society, हमारा surrounding, हमारा background एक टाइप के में. चलो ओके, unmute your mic, mute your mic. ओके. तो इन सच कंडीशंस हमारी सोसाइटी में जो हमें बताया जाता है व्हाट अबाउट सोसाइटी थिंक, तो हम वही इमेज क्रिएट करते हैं. जैसे हमने टीचर में सम में भी क्रिएट द इमेज द मेल, सम में भी फीमेल. तो एक हमारी सोच होती है कि दिस प्रोफेशन में बी मोस्टली ज्वाइन बाय द दिस जेंडर, मेल होती है या फीमेल होती है. व्हेन नेक्स्ट टर्न कम्स टू द फार्मर तो मोस्ट ऑफ थिंक अबाउट द ये मेल पर्सन हु आर वर्किंग इनसाइड द फील्ड, जो वर्क कर रहा है. तो हमारे इस टाइप की इमेज हम क्रिएट करते हैं.
थर्ड अबाउट द फैक्ट्री वर्कर, तो मोस्ट ऑफ क्रिएटेड द इमेज ऑफ द मेल दोज हु आर वर्किंग इनसाइड द फैक्ट्रीज, फैक्ट्री चल रही इस टाइप की इमेज वी हैव क्रिएटेड। नेक्स्ट नर्स टू रिलेटेड पिक्चर्स व्हाट वी हैव क्रिएटेड अबाउट द फीमेल, कि मोस्टली जो पोलाइट वे से दोज हु मे बी ट्रीट विद द पेशेंट वो फीमेल हो सकती है। तो दिस इज द मैसेज गिवन बाय आवर सोसाइटी। ये इस टाइप का जो मैसेज है हमारे लिए कौन देता है, हमारी सोसाइटी देती है। साइंटिस्ट में आपने मोस्ट ऑफ पिक्चर क्रिएट की होगी मेल की, सब में भी फीमेल भी किया होगा, पर मोस्ट ऑफ थिंग की दे आर नॉट फेमिलियर विद द टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, और मे बी इफ यू क्रिएट द इमेज ऑफ पायलट तो सब में भी फीमेल क्रिएट की होगी। तो चेक योर सेल्फ ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 56 गिवन कि थ्रू दिस एग्जाम्पल व्हेन प्लीज, तो थ्रू दिस एग्जाम्पल व्हेन दे सॉर्ट आउट, तो कैटेगरी टीचर में जो 5 मेल एंड 25 फीमेल इमेज आई है। तो हमारी सोसाइटी में क्या है कि टीचर प्रोफेशन ऐसा है जो मोस्ट ऑफ फीमेल होते हैं, और फार्मर में 30% मेल इमेज किसकी आई है, मेल की। बट यू नो वेरी वेल कि 83% जो हमारे कंट्री में जो फार्मर्स का वर्क करते हैं, दोज आर पुटिंग देयर एफर्ट्स इनसाइड द फील्ड, 83% आर वुमेन। 83% वुमेन है जो इस वर्क में है, 83%। जबकि हम क्या सोचते हैं कि फार्मर्स कौन होते हैं, ओनली मेल। तो दिस आर द थिंकिंग ऑफ द सोसाइटी। क्यों? क्योंकि हम सोसाइटी से सीखते हैं। सोसाइटी में बताया जाता है कि बॉयज़ के अंदर इमोशंस कम होते हैं, गर्ल्स में इमोशंस बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं। तो दिस आर द मैसेज गिवन बाय आवर सोसाइटी। ये हमें हमारी सोसाइटी सिखाती है और हम वैसे ही बन जाते हैं। क्या इमोशंस बॉयज़ में नहीं होते? होते हैं कभी कभी। यू नो, जैसे यस्टरडे वी वर डिस्कस्ड कि व्हाई यू आर क्राइंग लाइक ए गर्ल, एक था आपके चैप्टर में इन सिविक्स बुक कि, तो ये नहीं है कि गर्ल्स से हमेशा क्राइम में भी और में भी इमोशंस और फीलिंग्स को बाहर निकालते, इट मे बी विद द मेल। क्या मेल के इमोशंस नहीं होते? क्या बॉयज़ के इमोशंस नहीं होते? क्या बॉयज़ रो नहीं सकते? देव नो सच राइट्स। तो बट सोसाइटी इज क्रिएट, तो वो क्या करते हैं, ऐसे इमोशंस भी बाहर आना चाहते हैं, तो दे मे बी कंट्रोल देयर इमोशंस कि ओ आई एम बॉय यार, आई कांट ट्रीट और मे बी रिएक्ट लाइक ए गर्ल, मैं ऐसा रिएक्ट नहीं कर सकता। तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल। शुभम प्लीज म्यूट योर माइक, शुभम। तो सम टाइम दिस हैपन्स, ओके। तो हम कभी कभी वो लाइफ जीते हैं जो हम रियल में वैसे है नहीं, लाइक तो सम टाइम दिस हैपन्स इन आवर सोसाइटी कि हमें दुख भी है फिर भी हम उसको शेयर नहीं करते। तो इन दिस चैप्टर ऑल दिस पॉइंट विल डिस्कस। तो हमने फर्स्ट एग्जांपल जैसा डिस्कस किया रिलेटेड टू योर बुक कि हमें एक फिक्स इमेज हमें बताया जाता है, हम वैसे इमेज क्रिएट करते हैं रिलेटेड टू नर्स हो, रिलेटेड टू पायलट हो, रिलेटेड टू द फार्मर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, एनीवन। तो हमने जैसा सुना है वी क्रिएट द सच इमेज। तो why this happens in our society with the female, why the female are not getting the proper opportunities or equality in society, क्यों नहीं उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है सोसाइटीज के अंदर? तो ये क्या है, हमने रिजिड जो हमारी रिजिड एक्सपेक्टेशंस है ना, हमने एक लिमिटेड कर रखा है अपने एक्सपेक्टेशंस को। हमने बना रखा है सोसाइटी ने कि दिस वर्क suitable for that gender, this work suitable for that gender, women are naturally made for the only kitchens work। तो इस टाइप की हमारी ये सोच है कि वो केवल किचन वर्क के लिए परफेक्ट होती है वुमेन्स। तो दिस इज द जनरेटेड बाय आवर सोसाइटीज ओनली, नॉट बाय अदर्स। मेनी टाइम व्हाट हैपन्स, व्हाट देयर पेरेंट्स थिंक अबाउट द गर्ल्स, प्लीज जस्ट वेट हियर। तो many time what our society think will provide the education till higher education for the girls, later on marry in such family which are the prosperous or maybe developed, okay। तो हम क्या सोच रखते हैं कि आफ्टर मैरिज अब उस फैमिली में उसकी मैरिज कर देंगे जिसमें प्रोस्पेरस और डेवलप्ड फैमिली हो और अच्छा बैकग्राउंड हो। तो व्हाई वी थिंक अबाउट दैट, क्यों? क्योंकि हम एक जो रिजिड एक्सपेक्टेशन है ना हमारे, एक लिमिटेड एक्सपेक्टेशन है, उनको
कंट्रोल कर रहे हैं, यानी हम ऐसी फैमिली में देना चाह रहे हैं जो वेल डेवलप्ड हो। व्हाई नॉट इन सच फैमिली वेयर द सिक एंड स्ट्रगल, उनका जो पोटेंशियल है वो बाहर निकल के आए। जरूरी थोड़ी आप वेल डेवलप्ड या वेल मेंटेन फैमिली में उनको दो। यू में भी आप ऐसी भी जगह दे सकते हो जहां तक उनके सामने देखो, मेनी टाइम व्हाट हैपेंस इन आवर लाइफ, इनोवेशंस व्हेन कम, इनोवेशंस कब आता है, किसी भी चीज की डिस्कवरी आविष्कार कब होता है, व्हेन वी नीड द सच थिंग या व्हेन वी फेस द प्रॉब्लम। जब हम लाइफ में प्रॉब्लम फेस करते हैं तो वी ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। जब तक हम सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाते जब तक की प्रॉब्लम नहीं आती। ओके, तो व्हेन वी ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन व्हेन वी फेस द प्रॉब्लम, तो इन आवर सोसाइटी जब वुमेन्स को हम वेल डेवलप्ड उनके पोटेंशियल को बाहर नहीं निकालेंगे, कुछ चैलेंजेस वो फेस नहीं करेंगे, तो हाउ दे मे बी प्रूफ देयर सेल्फ, वो अपने आप को प्रूफ कैसे करेंगे। हम उनको क्यों बाउंडेड कर रहे हैं, व्हाई वी आर बाउंडेड द वुमेन्स, वी मीन्स द सोसाइटी नॉट मी। तो व्हाई सोसाइटी इज बाउंडेड देयर फीलिंग्स, देयर लिमिटेशन, देयर पोटेंशियल, क्यों उनके अंदर जितनी एनर्जी है उसको हम बाउंडेड कर रहे हैं कि दिस दे आर गुड फॉर द सच वर्क। तो हम ये सोसाइटी की सोच होती है और इसी सोच से वुमेन्स को एक लिमिटेड और एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर खड़ा करते हैं। मेनी टाइम वी थिंक इन द फैमिली वी बिकम ए हेड ऑफ द फैमिली, जो होंगे वो हमारे ग्रैंडफादर और मे बी द हमारे फादर होंगे। तो वाई वी थिंक कि हम मेल जेंडर को क्यों सपोर्ट करते हैं। मैं नहीं कर रहा कि इन फॉर ऑल फैमिलीज ऐसा होता है, नहीं, सब में ऐसा नहीं है। डे बाय डे इज चेंज, दे आर चेंजिंग देयर थिंकिंग ड्यू टू द एजुकेशन। बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट द रिमोट एरिया, बैकवर्ड एरिया और रूरल एरिया, विलेजेस, अगर आज भी हम ये बात करें तो आज भी कुछ सोसाइटी जैसे व्हेन दे मिस एनी लेडी ड्राइव द फोर व्हीलर, तो दे में भी वो सरप्राइज हो जाते हैं, अरे लेडी कार चला रही, व्हाई दिस, ओ। तो सच सोसाइटी, आज हम कोई लेडी अगर कार ड्राइव करती है तो वी आर नॉट शॉक्ड इनसाइड द सिटीज, हम सिटी में उसको देख के बड़ा हमें सरप्राइज नहीं होता। बट दिस हैपेंस इन रिमोट एरिया, तो दे हैव नो सच राइट्स टू ड्राइव द कार। क्या उनको राइट्स नहीं होता, क्या वो अपनी लाइफ नहीं जी सकते। बट हमारी सोसाइटी ने एक बाउंडेड कर रखा है, ऐसी सोच बना रखी है। अब हम क्या सोचते हैं, हमें आपको अपनी सोसाइटी कौन सी लगती है बेटा, जो आप देखते हो तो आपको लगता है सर हमने तो नहीं देखा ऐसा होता है, बिकॉज यू आर ऑल बिलोंग फ्रॉम द वेल डेवलप्ड सोसाइटी। आप सभी वेल डेवलप्ड सोसाइटी से बिलोंग करते हो, इसलिए आपने ऐसे सिनेरियो देखे नहीं, ऐसे सीन कभी देखे नहीं। तो व्हेन यू विजिट द रिमोट एरिया और रूरल एरिया, तो यू मे बी say the such say inside. So this happens through the our rigid expectation। जो rigid expectations होते हैं हमारे, एक limited सोच होती है कि they are not good for the technical work, वो अपना technical work के लिए नहीं होती, और maybe they can't work the inside the office till late night। तो these are our thinking, ये हमारी thinking है। But when we visit the metro cities, अगर हम मेट्रो सिटीज और इसमें जाते हैं तो वी कैन सी कि वहाँ पे लेडीज टिल लेट नाइट तक भी वर्क करती। देयर आर मेनी ऑफिसेज दैट आर वर्किंग 24/7 आवर्स। तो दिस इज चेंजिंग इन द मेट्रो और मे बी थ्रू द एजुकेशन ओनली। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज पॉसिबल। जो हमारी रिजिड जो एक्सपेक्टेशन है, व्हेन वी चेंज इट, जो हमारी लिमिटेड जो सोच है, अगर हम इसको चेंज करेंगे तो वर्ल्ड विल बी चेंज। Women change can't, or they may be change or not, we don't know about that। but if we change our thinking, अगर हम हमारी सोच को चेंज करते हैं तो you know surely I am sure कि world will be change, वर्ल्ड धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। कहते हैं कि जब सोच बदलती है तो सब कुछ बदलता है। तो दिस इज द मेन माई मोटिव फॉर दिस चैप्टर, कि हम चैप्टर स्टडी कर लेंगे फॉर व्हाट, टू स्कोर द गुड मार्क्स, नो। अगर आपको मार्क्स लेने हैं तो फिर इस चैप्टर को इतना समझने की जरूरत ही नहीं। इससे बढ़िया होता है डायरेक्ट वी डिस्कस द एनसीईआरटी क्वेश्चंस, और उसी क्वेश्चंस को आप रट लेते, उसी में से कुछ क्वेश्चन आते हैं, यू मे बी स्कोर द गुड मार्क्स। मार्क्स स्कोर करना इट नॉट अ योर मोटिव। योर मोटिव टू थिंक अबाउट द सोसाइटीज। आप सोसाइटी के, प्लीज म्यूट योर माइक, थिंक अबाउट योर सोसाइटी। आप अपनी सोसाइटी के बारे में सोचो। क्या चैप्टर दिया है वो क्यों दिया है? We can understood the problem of the women's,
why they face the discrimination problem, why this is happens, how to we can remove the such inequalities between the male and female. जो ये inequalities है मेल एंड फीमेल में, इसको हम कैसे हटा सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं. तो यू शुड बी नो दिस ऑल द थिंग्स. दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज गिवन. इसलिए ये चैप्टर आपको दिया है कि आप समझो इस चीज को, आपकी सोसाइटी में व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है. देयर आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट. आप समझ तो रहे हो बेटा मैं जो बोल रहा हूँ. ऐसा तो नहीं कि आपको बोरिस्ट पैराग्राफ इज गिवन इन योर बुक इज रिलेटेड टू द स्टेरियोटाइप्स. स्टेरियोटाइप्स मतलब एक हमारी फिक्स इमेज. वी हैव क्रिएट द फिक्स इमेज बाय आवर सोसाइटीज. हमारी सोसाइटी के द्वारा हमारे अंदर एक फिक्स इमेज बना दी गई है अबाउट द वुमेन्स के वुमेन कांट डू द सच थिंग. अब जैसे कि इन सदर्न इंडिया, इफ यू लिव द सदर्न इंडिया पार्ट को छोड़ दो आप, तो इनसाइड आर राजस्थान और मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द दोज स्टेट आर क्लोज टू द राजस्थान. Have you seen the women driver inside the bus, truck driver? No, no. तो why this type of stereotypes created by the public? क्यों इस टाइप के stereotypes बना रखे कि they are not good for driver, they can't take the decisions और ये नहीं है. तो few examples is given in your book related to this stereotypes. Who break the stereotypes? तो first example is given to the in your book related to the railway driver. So in this book, please mute your mic, Arshwardan. Please, these are the common thing here. Please mute your mic dear. मैं डेली नहीं कर सकता आपको. तो breaking stereotypes, there is the one example given in your book. You can see on page number 57. और ए चलो let's start the story. A story is given. Engine drivers आर मैन. मोस्ट ऑफ आज तक हम जो देखते हैं मैन होते हैं. बट 27-year-old लक्ष्मी लाकरा फ्रॉम ए पुअर ट्राइबल फैमिली इन झारखंड, सी बिलोंग फ्रॉम द झारखंड, एंड बिगिन टू चेंज द थिंग्स ऑफ द सोसाइटी. जैसे सोसाइटी सोचती थी कि ओनली मेल बिकम ए रेलवे ड्राइवर, तो सी चेंज द सोसाइटी थिंकिंग. She is the first woman engine driver in the Northern Railways. जो first lady है इंडियन लेडी who break this stereotypes. लक्ष्मी. तो लक्ष्मी parents are not literate but they struggle and overcome many hardship to make sure their children got a education. So there are many families in our societies, their children are getting the proper education. There are many parents, they are facing the problems. After that, they are arranging the resources for their children. वो अपने बच्चों के लिए फिर भी resources को arrange करते हैं. तो like this example related to the Lakshmi. Lakshmi helped with the housework and did all the jobs. She studied hard and did well. Went on to get the diploma in electronics. So when you become a railway driver, so what type of the diploma is required? It is the ITI required, not IIT. It is the ITI. Instrumentation जो training होती है ना, so these are required for the railway drivers. Or went to diploma in electronic. She then took the railway board exam and passed in first stage, यानी first attempt. So she give the exam of railway drivers and attempt in first